टुडे वी विल नो व्हाट इज़ ब्रिक एंड इसका कंपोजिशन क्या है एंड कैसे ब्रिक बनाया जाता है और इसका कुछ टेस्ट है, वो सब क्या क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। ब्रिक ब्रिक का जो कंपोजिशन जो है, अच्छे मिट्टी का जो ब्रिक है वो होने के लिए कुछ कंपोजिशन चीज़ की ज़रूरत होता है। वो सब है। एक है सिलिका, एलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और अल्कलाइज। Those components have some percentage or proportion. Those are सिलिका के लिए 50 to 60% होना चाहिए प्रोपोर्शन। एक प्रोपोर्शन होता है 100% में से सिलिका का परसेंटेज होना चाहिए 50 to 60%। एलुमिनियम का परसेंटेज होना चाहिए 20 to 30। लाइम का 5 to 10। आयरन ऑक्साइड का 7% से कम होना चाहिए। अल्कलाइज का 10% से कम होना चाहिए। मैग्नीशिया का 1% से कम होना चाहिए। ये सब हो गया उसका प्रोपोर्शन। एंड द हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक, ब्रिक में जो खराब उपादान जो होता है वो सब है। हाई यूज ऑफ सिलिका, सिलिका का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा? प्रोपोर्शन इन ब्रिक लीड टू डिस्ट्रॉय द cohesion property of brick particles. End of result, brick turn into highly brittle and unuseful, so high percentage use of silica become harmful ingredient in brick earth. अगर हम लोग सिलिका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर उसका जो प्रॉपर्टी हो जाएगा वो ब्रिटल हो जाएगा। उसका अगर हम उसको 2-3 बार मारेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। তারপরে excess use of alumina turn into harmful ingredient of brick earth because brick material shrink and warp due to excess use. Excess use of lime produces a bad effect on the brick to melt and brick earth lose its shape. लाइम अगर ज़्यादा होगा तो फिर जो ब्रिक का जो शेप है ना वो ख़राब हो जाएगा। If lime used in lump, it will decrease moisture resulting in the disintegration of the brick. High use of magnesium become a reason for the decay of brick. Excess use of alkalis melt the brick and produce unsymmetrical मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक। ब्रिक जो है वो प्रस्तुत करने के लिए वो 4 स्टेज है। पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले जो हम सॉइल यूज़ करेंगे उसको प्रिपेयर करना होगा। ब्रिक के लिए वो अनुकूल है क्या नहीं वो देखना होगा। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, the topsoil of the topsoil the removal of a topsoil involves the loose material percentage of at the top of the soil for a depth of 200 mm. These materials should be removable as they contain a lot of impurities and are not used in the preparation of brick. मिट्टी का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो 200 mm तक हम लोग बात दे देंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी ब्रिक के लिए कोई काम नहीं आता। वो उसमें बहुत इम्प्योरिटीज मतलब अ, अ, पौधा टौधा और प्लास्टिक टैस्टिक ऐसा रहता है, इसलिए वो यूज़ नहीं करते हम लोग। डिगिंग एंड स्प्रेडिंग, आफ्टर डिगिंग द सॉइल अबाउट 20-200 mm the soil is spread into a level ground and heaps of clay are about 600 to 1200 mm. इसके बाद जो हम मिट्टी लेंगे ना वो 600 से 1200 mm तक ले लेंगे। Cleaning, after spreading the soil on the ground, it should be cleaned of stone, vegetable matter, pebble, etc. If cause of non-clay material are present, the clay should be washed and shrinked. This whole process will be excessive and clumsy. The lumps of the soil should be crushed into a powder form. हम जो सॉइल का जो सॉइल का जो है वो हम साफ करेंगे वेजिटेबल
वेजिटेबल जो होता है, जो मिट्टी के ऊपर जो गाछ पौधा टौधा उगते हैं, और जो स्टोन है, वो सब हम साफ करके ब्रिक के मिट्टी हम लोग लेंगे. Weathering the soil is then exposed to the atmosphere from softening for a few weeks, depends on the nature of the soil, which imparts plasticity and strength to the soil. Blending to increase the quality of a soil, addition sandy clays may be added in suitable proportion along to increase the quality of soil. Additionally, sand clay may be added in a suitable proportion along with coal, ash, etc., and the whole mass is mixed uniformly with water. Tempering. After adding the sufficient quality of water, the soil is cleaned under the feet of men or cattle to make it stiff and homogeneous. It generally the handmade. The soft plastic clay could be prepared by using about 25 to 30% water. For making superior brick on a large scale of about 20,000, the earth is tempered in. Molding of brick. मोल्डिंग ऑफ ब्रिक का मतलब है, जो हम ब्रिक घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका एक प्रॉपर साइज़ है. उसमें से हम इंडियन स्टैंडर्ड में नॉमिनल साइज़ जो है, उसके हिसाब से 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है. एंड एक्चुअल साइज़ ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक का जो मेन साइज़ है, जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो है 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. द ब्रिक. तापर इसके बाद जो है, a brick mold is a rectangular box of steel or wood which is open of a top, and the bottom of the box is inside, and inside diameter is 20 10 10. Molding the brick can be doing using either hand or machine. ये जो मोल्डिंग है ना, मोल्डिंग मतलब जो शेप देना होता है, उसका साइज तो है 20 into 10 into 10. इसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ रहता है, खुला हुआ रहता है. which of the open of the top and bottom at the box, and नीच का जो हिस्सा है ना, वो बंद किया हुआ रहता है. ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर देना होता है, और वो उसका साइज के हिसाब से ऊपर जो हिस्सा होता है उसको छाट के फेंक देता है. हैंड मोल्डिंग, जो हम लोग हाथ से जो बनाता है ना ब्रिक का, वो है, वो टू टाइप से होता है. एक तो है ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग, दो टाइप से होता है. ये जो है ना, पहले जो मिट्टी के साथ पानी को मिक्स करके एक क्ले बना लेता है. उस क्ले के बाद एक जो बॉक्स का जैसा है, उसको बॉक्स के अंदर उस क्ले को दबा देता है, और नीचे में टेक्सचर लगा हुआ आता है. उसके उसकी वजह से ही ब्रिक के अंदर नाम लिखा हुआ आता है. कोई कंपनी का लिखा होता है, BM BF, ऐसे कुछ करके नाम लिखा हुआ आता है. ग्राउंड मोल्डिंग जो है ना, the process of molding brick on the ground modular by labor is called ground molding. जो फील्ड में ही अगर लेबर उस ब्रिक को बनाता है, उसको बोलता है ग्राउंड मोल्डिंग. इसमें से हिसाब से मोल्डर कैन मोल्ड अबाउट 750 bricks per day. When the bricks have dried sufficient, they are moved to the drying shed and placed in the ordinary manner. टेबल मोल्डिंग. ये जो टेबल मोल्डिंग है, एक ऐसा होता है, द टेबल मोल्डिंग ऑन इज डूइंग ऑन ए टेबल इन ए साइज 2 mm, 1 mm and 0.7, oh sorry, is of size 2 meter and 1 meter and 0.7 meter instated on the ground.
This table molding process is almost similar to the ground molding except to the some minor changes. मशीन मोल्डिंग जो है वो क्या है, ये भी एक सेम प्रोसेस का है। ये जो है पहले हम लोग क्ले बना लेते हैं। क्ले क्ले हम एक बॉक्स मशीन में डालते हैं और मशीन से वो कॉम्प्रेस्ड होके निकलता है और ऊपर से कटर होता है, उस कटर से ब्रिक का साइज के हिसाब से काट देता है। ऐसे ही मशीन में ब्रिक बनाता है। और प्लास्टिक मेथड, this method of planced earth is used, which is placed on the machine that contains a rectangular shape of a size equal to the length, wide, and the brick. A beam of a molded earth comes out of it and is cut into strip by wires fixed in the frames. These bricks are also called wire cut brick. Dry method. In this method, the machine first converts the hard earth into a powder form, and a small quantity of water is added in the powder to make it stiff plastic paste. This paste is placed in the mold and paste on the machine to form hard and correct spreaded brick. These bricks are known as pressed brick, which do not require any drying and can be sent directly to the burning section. इसके बाद जो है ड्राइंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक को हम लोग कैसे ड्राई करेंगे, इसका नेचुरल ड्राइंग होता है और एक होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग में जो होता है इट इज़ कॉल्ड टू ए hack drying, which composed placing molded bricks in the row on their edges slightly above the ground, called a hack. These bricks are air and sun dried, that is strong enough to use for the construction of small structure. जो है छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है ना, इसके लिए ये परफेक्ट होता है, लेकिन बड़े स्ट्रक्चर के लिए ये परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, इसलिए आर्टिफिशियल ड्राइंग करना पड़ता है। और आर्टिफिशियल जो ड्राइंग है और आर्टिफिशियल जो ड्राइंग है वो है when brick are needed to dry a large scale, this is artificial drying is preferred. There is a dried of a special dried of a special dryers which received that the specially made furnaces for artificial drying. Burning of brick. After the process of molding and drying, bricks are burnt into kilns to increase the hardness, strength, and to increase the density of a brick. Some physical and chemical changes take place on the burning of brick. Heating brick is about 640 degrees Celsius. Produce only physical change of the brick is heated up to 700 to 1000 degrees Celsius. It undergoes chemical changes. These these types of kilns used for burning purpose are clamp or open kiln. Clamp or open kiln. This is a temporary. This is a temporary structure with some advantage like low low initial cost, low fuel cost, and a few skilled labor are sufficient to complete the process. This disadvantage is only small quantity of brick is manufactured at a time
ओनली 60% और गुड क्वालिटी ब्रिक्स। इसमें से जो 100% में से 60% गुड रहता है और 40% बैड। इसमें छोटा मतलब कि देखिए 50,000 ईंट एक साथ किया जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री में एक साथ 10 लाख ब्रिक एक साथ ड्राइंग करते हैं। इसके बाद जो है इंटरमीडिएट क्लीन, when a large number of good quality bricks are needed, intermediate process is good। this process में of burning is discontinuous। पहले धाप स्टेज स्टेज में ब्रिक को बर्न किया जा सकता है। continuous clean, this process of a burning is continuous and they are of the three types: egg Bull-Tech clean, tunnel clean and Hoffman clean। ब्रिक हम लोग कैसे बनाते हैं उसका एक फ्लो चार्ट है। पहले अनसॉइलिंग, जो खराब है वो हम फेंक देते हैं। डिगिंग, मिट्टी लेते हैं। क्लीनिंग, मिट्टी को साफ करते हैं। वेदरिंग, वेदरिंग ब्लेंडिंग एंड टेम्पिंग। इसके बाद जो है मॉड्यूल मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब जो टेक्सचर में डालते हैं। उसके बाद ड्राइंग करते हैं। ड्राई मतलब कि हल्का सूखा होना चाहिए, अगर टेक्सचर वहाँ से निकाला जा सकता है ऐसे कुछ। उसके बाद इसको पुराता है, पुराता है मतलब बर्निंग करता है। इसके बाद हम लोग ब्रिक पाते हैं। ये भी एक प्रोसेस है। पहले माइनिंग, उसके बाद मिट्टी को स्टोरेज करता है। साइज रिडक्शन, साइज करते हैं। स्क्रीनिंग, फॉर्मिंग एंड कटिंग, कोटिंग एंड ग्रेजिंग, ड्राइंग। इसके बाद हीटिंग, उसके बाद स्टोरेज करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ brick as per constituent material, there are various type of brick used in masonry: common burnt clay brick, sand lime brick, engineering brick, concrete brick, fly ash clay bricks। types of test on a brick for construction purpose, क्या क्या टेस्ट है उसमें से? ऑब्जर्वेशन टेस्ट, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, शेप एंड साइज, कलर टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट। एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ ब्रिक, एब्जॉर्प्शन टेस्ट मैं पहले बोल देता हूँ। पहले एक बकेट के अंदर पानी लेता है, उसके बाद ब्रिक को डुबा देता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिक को अच्छे से पोंछ के उसका वेट ले लेता है। लेने के बाद उसको 24 आवर्स तक हीटर के अंदर मतलब ड्राइंग मशीन के अंदर ड्राई करना होता है। उसके बाद उसको बाहर निकाल के उसका वेट करना होता है। इसके बाद पहले जो उसका वेट ब्रिक का जो वेट था, मतलब भिगा हुआ ब्रिक का जो वेट था और सूखा हुआ ब्रिक का वेट के अंदर जो जितने ग्राम वाटर का डिफरेंस है वो है उस ब्रिक का पानी पकड़ने का क्षमता। ये है, ये पानी पकड़ने का क्षमता जो है, द गुड क्वालिटी ब्रिक, द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी एक्सीड 20% से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छे ब्रिक के वाटर एब्जॉर्प्शन का क्षमता 20% से ज़्यादा नहीं होगा, और खराब ईंट का जो है 20% से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन का टेस्ट। इसके बाद है क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? एक क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक डिटरमाइंड बाय द placing brick on a compression testing machine after placing the brick is compression testing machine apply load on it until brick break। इसमें ब्रिक के ऊपर कंप्रेशन लोड देना होता है जब तक ब्रिक टूट ना जाता है। अगर मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक 3.50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इफ इट इज less than 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, then it is not useful for the construction purpose। 3.5 के
अगर नीचे हुआ तो फिर वो यूज़ नहीं किया जा सकता। और है हार्डनेस ऑफ ए ब्रिक। ब्रिक का जो हार्डनेस का टेस्ट है वो कैसे करता है? ए गुड ब्रिक शुड scratches against a sharp thing, so the test is a sharp tool or fingernail is used for the make snatch of a brick. If there is a no scratch impression on a brick, then it is said to be hard brick. Or a shape and size test on brick. Shape and size of a brick are very important construction. All bricks used for construction should be of same size. The shape of a brick should be purely regular with sharp edge. Standard brick size consists length, breadth, height 90 centimeter 9 into 9 centimeter. To perform this test, select 20 bricks random from a brick crown group and the stick them along the length, breadth, and height. So the all the bricks similar size, then they are qualified for construction work. इसमें क्या होता है? 20 ब्रिक्स को एक साथ लाइन टू लाइन लेना होता है। उसके बाद इसका लेंथ के हिसाब से लाइन में लिखना होता है, ब्रेथ के हिसाब से टोटल लेंथ, टोटल ब्रेथ, वाइड के हिसाब से टोटल वाइड, एंड हाइट के हिसाब से टोटल हाइट लेने के बाद उसमें से 20 से डिवाइड करने के बाद अगर हमको 19 into 9 आता है तो फिर वो ब्रिक है, परफेक्ट ब्रिक। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग वो ले सकते हैं। Color test of a brick. A good brick should process bright and uniform colors through the body. उसके बॉडी हिसाब से कलर कोई एक यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट ऑफ ए ब्रिक। मैं बोल देता हूँ कि दो ब्रिक को हम लोग एक दूसरे से ठोकर मारेंगे। ठोकर मारने के बाद अगर वो साउंड क्लीन एंड टक करके आवाज़ होता है तो फिर वो ब्रिक सही है। अगर दोनों को मारने से दो ब्रिक में से एक ब्रिक कहीं से भी टूट जाता है तो फिर वो ब्रिक अच्छा नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक। और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिक, पिक वन ब्रिक रैंडमली फ्रॉम द ग्रुप एंड ब्रेक इट। ऑब्जर्व द इनर पोर्शन ऑफ ए ब्रिक, if it should be free from lump and होमोजीनियस। हम लोग एक ब्रिक को लेंगे, उसको टूटने के बाद हम उसके अंदर देखेंगे अंदर क्या क्या है। अगर वाइट वाइट है तो फिर वो एक अच्छा नहीं है। ये फ्लोरोसेंस टेस्ट ऑफ ए ब्रिक क्या होता है? A good quality brick should not contain any suitable salt in it. If suitable salt are there, then it will cause a fluorescence on a brick surface. To know the presence of a suitable salt in a brick, placed in a water bath for 24 hours and dry it in a shade. After drying, observe the brick surface thoroughly. If there is any white and gray color deposed, then it contains suitable salt and not useful for construction purpose. अगर ब्रिक में कुछ सॉल्ट टाइप का कुछ आता है ना तो फिर वो कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, यही था ब्रिक के ऊपर एक शॉर्ट नोट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल। थैंक यू।